exams are not just a test of knowledge, but a test of strategy. You might have been best in the business to hit a cover drive, but exam day tests when you should hit a cover drive or when you should leave the ball. If you are preparing for NEET PG 2025, then this video is definitely for you. Hello everyone, I am Dr. Ritik Agarwal here. So in this video, I'll be talking about the first year subjects, how you should be proceeding it with first year subjects and from where you should ideally be reading them. This video does not basically mean that you should change your source if you have already begun preparation or if you have already made the notes. This video is just to guide the fellow students who either want to start the preparation right now or they're preparing for NEET PG 2026 or so on. So I hope you might find this video useful. In our previous videos where we talk about the realistic schedule which you should be following ideally. So in that video I showed you one checklist where I notified what all you should be doing. So there were videos plus the notes, PYQs, GTs and the Q bank. So in this video we'll be talking about videos and the notes, how and from where you should be watching the videos and how you should be preparing your notes side by side. So first of all, let's see for anatomy. The ideal source for anatomy is Dr. Ashwini Kumar, and we all know that he teaches at DBMCI in E-Gurukul. For a while now, he has also been teaching at Marrow. So you can watch his videos, basically rapid revision videos for all the subjects, for all the 19 subjects, you have to watch the rapid revision videos and those are more than sufficient. The basic funda of any examination is that 80% of the questions come from 20% of the topics. 20% of the syllabus caters those 80% questions. So if you are watching the rapid revision videos, so there it is about 25 to 30% of those content which will cater your 80% to 90% of the questions. So it is that कि you have to master it. ये तो master करना ही करना है. इसके अलावा जो हमारे PYQs होंगे, जो हमारे GT में questions आएंगे या थोड़े बहुत जो हम custom module subject wise test करेंगे, वो questions हम इसमें annotate कर लेंगे. So that will holistically तुम्हारा 95 to 98% of the syllabus and the content will be covered there. और वो बचा हुआ 2-4% ना, they like you, even if you watch rest of the videos, rest of the content अगर तुम देखोगे तो तुम उतना कर भी नहीं पाओगे क्योंकि you cannot retain so much of the information alongside that. So for anatomy, the ideal source is Dr. Ashwini Kumar, and you can watch his rapid revision videos either at DBMCI in E-Gurukul. Currently the app has been renamed to DBMCI 1, or you can watch his rapid revision videos for NEET PG at Marrow. The total duration for the rapid revision videos of Dr. Ashwini is 8.5 hours. And सबसे पहले एक और important चीज I would like to mention here is you might have heard a lot of times कि you have to read the same source again and again and revise again and again. कम पढ़ो बार बार पढ़ो, same पढ़ो बार बार पढ़ो. These all things you would have heard many times. But have you ever wondered कि ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? Everyone is having the same source. वो उसको बार बार पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? So ये concept ऐसे आता है कि जब हम कोई एक बहुत छोटी चीज करते हैं, rapid revision को हटा देते हैं भी थोड़ी देर के लिए. मैंने कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखी 2 घंटे की एंड देयर इट इज की कंप्लीट एनाटॉमी इज कवर्ड देयर, या फिर यू आर डूइंग इट वेरी रैंडमली कि ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, तो तब क्या होता है, हमें सेल्फ डाउट आता है. क्यों आता है? क्योंकि हमें हमेशा ये लगता रहता है साइकोलॉजिकली, मेंटली कि हमने जो पढ़ा हुआ है ना वो बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा हुआ है, वो हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है. तो जब ऐसा होता है तो हम थ्रू आउट आवर जर्नी हम क्या करेंगे कि यार हमने मान लो एक सोर्स करा है, उसके बाद में हमें लगा कि यार ये टॉपिक मेरे में नहीं है, ये टॉपिक मेरे नोट्स में नहीं है, ये टॉपिक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अपने फ्रेंड को पूछेंगे कि तुम्हारे नोट्स में ये है, उसने कोई और दूसरा सोर्स करा है, तो हम उस पर स्विच कर जाएंगे. तो हमने शुरू एक सोर्स से किया, फिर हम दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, हम कोई भी सोर्स पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हमें लगा कि ये मैंने पढ़ रखा है, ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लो. सो हम ऊपर नीचे इसी में होते रहेंगे हमेशा. सो व्हाट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इज कि एक सोर्स पकड़ो, उसे पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो. तुम्हें कुछ PYQ मिल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, तुम्हें इंट्यूशन आता है कि यार दिस माइट बी द क्वेश्चन, जो एक नया क्वेश्चन आ सकता है, उसको लिख लो. दैट्स इट. अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि PYQ है बट रैपिड रिवीजन नोट्स में नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल सा अपना उसी टीचर के मेन नोट्स खोलो, वो टॉपिक को पढ़ो, दैट्स इट, उसको लिख लो. दैट्स इट. दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. एंड यू डोंट हैव टू बी कि हर चीज के पीछे भागना नहीं है. लर्न टू लिव इट इन द वर्ल्ड ऑफ फोमो. बी लाइक यूज JOMO, what I have always heard and what I have always followed. Ki instead of fear of missing out, just have the joy of missing out. Okay, so either some people call it JOLO, joy of leaving out. So ideally you should be doing Ashwini Kumar's rapid revision for anatomy. Duration is approximately 8.5 hours. You can easily do it in 2 days, even in 1 day you can do it, but do it in 2 days. So that after that followed by PYQs you can do it. Okay, then comes physiology. Physiology is a subject where एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गए ना, वो लंबे समय तक याद रहेंगे तुम्हें. तो इसको हमें ऐसे पढ़ना है कि ये नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए.
हमें बस एक बार समझना है, वो हमें काफी टाइम तक याद रहेंगे। एंड फिजियोलॉजी मेक्स द बेस फॉर मेडिसिन इन अ लॉट ऑफ केसेस। और अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कार्डियक साइकिल हो गया, उसके एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, सो दोस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली केटर्ड बाय फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी के लिए आइडियल सोर्सेस डॉक्टर कृष्ण कुमार, ही टीचेस करंटली एट मैरो, एंड रैपिड रिविजन की ड्यूरेशन जो है उनके 12 आवर्स की है। इन दीज 12 आवर्स तुम्हारा ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट पूरी फिजियोलॉजी अच्छे से कवर हो जाएगी विद अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एंड दिस प्रीवियस ईयर डज नॉट स्पेसिफिकली मीन कि नीट में आया हुआ है। इस साल भी हमने देखा नीट पीजी में कई क्वेश्चन जो कि एनआईसीटी के थे, दे वर रिपीटेड इन नीट पीजी। सो जब हम पीवाईटीज की बात करते हैं ना, यूजुअली डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू नीट पीजी ओनली। नीट पीजी के तो करने ही करने हैं, उसके अलावा एनआईसीटी के भी तुम जितने कर सको उतने कर लो, बट नीट पीजी के बेसिकली करने हैं। तो ये रैपिड रिवीजन जो होता है ना, वो यूजुअली एनआईसीटी और नीट पीजी उन दोनों का कवर करके बनाया होता है। और एंड मोस्ट ऑफ दीज फैकल्टी विच आई विल बी टेलिंग यू, ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि अगर आप इनके कोई 4 साल पुराने नोट्स भी उठाकर देखोगे, एंड इफ यू सी दोज नोट्स, सो आज के जमाने में, आज के टाइम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ दीज फैकल्टीज हैव कवर्ड दोज क्वेश्चंस एज वेल इन देयर नोट्स 4 years बैक। So that's what the experience these teachers hold. So you can blindly trust on these teachers and even on others as well. Okay, so you can blindly trust on any of these teachers and do your job. Your job is just to follow them. Whatever they are saying, whatever they are teaching you, you have to follow it. You have to master that content and do rest of the PYQs and annotate your notes if anything is missing out. Okay, so ideal source is Dr. Krishna Kumar. He is currently at Marrow. Duration of rapid revision is around 12 hours. एंड इसके अलावा आपको एक, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, सो यू कैन डू ग्राफ्स वीडियोस बाय डॉक्टर सोमेन मन्ना, विच इज करंटली अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड और you can do graphs video by Dr. Zainab ma'am, that is in BTR, that is a paid thing, so you can do either of them. Okay, then comes biochemistry. Biochemistry is one of the most volatile subjects, and currently अगर हम ट्रेंड देखें ना पिछले 2-3 सालों में, the number of questions from biochemistry has increased to the most. पहले लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो अराउंड 14-15 क्वेश्चंस वर देयर, दिस ईयर आल्सो 10 to 12 क्वेश्चंस वर देयर इन ईच सेट। सो दिस सब्जेक्ट अमंग द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंस, एंड ये वोलेटाइल भी है। तो इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम जो नोट्स बना रहे हैं वो माइंड मैप्स हो, ताकि हम उसको बार बार रिवाइज कर सकें, फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकें, और वो लंबे समय तक हमें रिटेन रहें। सो आइडियल सोर्स फॉर बायोकेमिस्ट्री इज ईदर यू कैन डू डॉक्टर स्माइली मैम और डॉक्टर अंकुर जैन सर। बोथ ऑफ देम आर ट्रेमेंडसली गुड, एंड बोथ ऑफ देम मेक्स यू फील की बायोकेमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ना, वो भी इजीली याद हो सकता है। उसके लिए एक बस जो है वॉलेटाइल वॉलेटाइल वॉलेटाइल, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें लगती वॉलेटाइल है, बट इफ समवन टेल्स यू द इजी वे टू डू देम ना, इट सीम्स अ केक वॉक देन। ओके, सो यू कैन डू ईदर ऑफ देम, स्माइली मैम और अंकुर जैन sir, and currently both of them are have their rapid revision videos available at Cerebellum app. The duration ranges around 7.5 hours for Smiley ma'am and 9.5 hours for Ankur Jain sir, so you can watch either of them. Okay, and one more thing here, in biochemistry you can also do, if you are not following this, either Smiley ma'am or Ankur Jain sir, you can do BTR as well. BTR is absolutely very good for biochemistry, क्योंकि उसमें क्या है कि मैम has integrated things in a very nice and conceptual manner. सो जो भी चीजें आई हुई है बीकेम में, एंड स्पेसिफिकली मेंशनिंग की जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो करंटली नीट पीजी वाली साइड पे अभी उतना टच्ड नहीं है, अभी कम क्वेश्चंस आते हैं नीट पीजी वाली साइड पे जेनेटिक्स पोर्शन से, सो मैम हैज कवर्ड दैट एज वेल। उसके अलावा विटामिन एब्सोल्युटली गुड इन समराइज इन 1 or 2 pages बाय जैनब मैम, सो यू कैन ऑल्सो डू बीटीआर एज वेल इन दैट। ओके, सो this is how you should be approaching all the 3 subjects of first year. So now I'll be telling you कि approach basically करना कैसे है। आपने वीडियोस देखनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि whenever you are starting your day, just I'll be uploading the checklist as well if you want. Okay, and this is also available on many channels on Instagram I have seen. So एक कोई भी एक लिस्ट उठानी है, you have to just watch कि यार ये PYQs हैं, तो बस हमने बस देखा है कि ये PYTs आए हुए हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो भी आपको टीचर, either you can view of these teachers which I have mentioned faculties, or if you have any other subscription or any other app if you have, so वहां से देख सकते हो। अगर आपको ये लग रहा हो कि यार ये एक ई गुरुकुल का बता दिया, एक मैरो का बता दिया, एक सेरिबेलम का बता दिया, मेरे पास तो एक ही सब्सक्रिप्शन है, मैं कैसे तीनों देखूंगा, सो यू कैन वॉच जो भी तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है उससे देख लो। वरना क्या कर सकते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स के पास या किसी और के पास अगर कोई और सब्सक्रिप्शन है तो तुम उससे एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई ले तू एनाटॉमी देख ले इतने, मैं इतने बायोकेमिस्ट्री देख लूंगा। तो इस तरीके से जब हम 2-3 लोग साथ में मिल जाते हैं तो लगभग सारे सब्सक्रिप्शन हमारे पास हो जाते हैं। और ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को 4 जगह से देखना है, नहीं, एक सब्जेक्ट को जिस जगह से देखना है उस जगह से देखो और खत्म करो अपना। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच इट। सो फॉर अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू ऑल द वीडियोस। ठीक है, सबसे पहले आप तुमने वीडियोस देखी, उसके बाद एक बार जैसी वीडियोस देखो ना, ये नहीं है कि जस्ट बंद करा एंड अपना चले गए,
उसके बाद वीडियोस देखने के बाद जस्ट गो थ्रू ऑल द पेजेस विच यू हैव नोटेड। सबके रैपिड रिवीजन नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि अपना बनाने से बेटर है कि तुम प्रीमेड ले लो, क्योंकि अपना बनाने बैठोगे तुम ऑलरेडी इतना थक जाओगे और टाइम भी तुम्हें लगेगा कि ज्यादा जा रहा है मेरा। जस्ट यूज प्रीमेड नोट्स, दे आर इक्वली गुड। सो वीडियोस देखो, उसमें इमेजेस भी होती हैं। सो आजकल जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी कि हाउ टू टेक दोज इमेजेस। सबसे पहले वीडियोस देखी हमने, उसके बाद हमने उनको एक बार पढ़ लिया। सो दिस वुड हार्डली टेक अराउंड 2 days फॉर ईच ऑफ दी सब्जेक्ट। 2 नहीं 3 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसके बाद जस्ट डू ऑल द पीवाईक्यूज। उसके बाद जब तुम पीवाईक्यूज करोगे उसके, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो मैंने वीडियोस देखी है, उससे मेरा काम बन रहा है। और जो मेरे टॉपिक्स नहीं कवर्ड है वीडियो में, वो मैं या तो मेन वीडियोस जो हैं वो देख लूंगा, वरना सिर्फ नोट्स पढ़ लूंगा। उतना तो मैं वहां से समझ में आ जाएगा नोट से भी कि यार ये टॉपिक ऐसे था, मुझे समझ नहीं आया था, या मेरा पीवाईक्यू गलत हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम मैंने देख लिया वापस। सो आफ्टर यू हैव डन ऑल द पीवाईक्यूज। 2017-18 तक के पीवाईक्यूज आइडियली यू शुड बी डूइंग। पहले नीट के करो, नीट प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद में INICET करो। दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, जो कि अलॉटेड ड्यूरेशन है ईच सब्जेक्ट का, तो FMG के भी कर सकते हो। पीवाईक्यू तुमने कर लिए, उसके बाद में तुम देखोगे कि जो मेरे टॉपिक्स नहीं थे वहां पे, या जो मेरे अभी भी गलत हुए हैं, उसको एनोटेट कर लो, और साथ में अपने नोट्स में पीवाईक्यू मार्क भी कर लो, ताकि वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। नाउ यू डोंट हैव दैट कि 200 में से मैं 120-30 करेक्ट कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 150, 160, 170 क्वेश्चंस यू हैव टू डू करेक्ट। विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द पीवाईक्यू एटलीस्ट, ठीक है। तो उसको तुमने एनोटेट कर लिया। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है कि जब ये सब तुमने एनोटेट कर लिया, तो तुम्हारे कंसोलिडेटेड नोट्स तैयार हो गए हैं कि यही तुम्हें बार बार पढ़ना है। रास्ते में अब जब तुम GT दोगे, या फिर तुम कोई पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, या फिर तुम कोई SWT दोगे, तो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो तुम्हें अगर लग रहा है कि 50% लोगों ने सही कर रखा है, तो तुम उसे अपने में एनोटेट कर लो, दैट्स इट। तो जब तुमने पीवाईक्यू दे दिया, किसी भी पीवाईक्यू कर लिए किसी भी सब्जेक्ट के, उसके बाद में SWT दो। SWT या फिर कस्टम मॉड्यूल लगा लो, एक 50 क्वेश्चन का आइडियली। तो योर टारगेट शुड बी कि इस 50 क्वेश्चन में से मेरे 40 सही होने चाहिए, जो तुमने सोर्स पढ़ा है। अगर तुमने पीवाईक्यू ढंग से करे हैं, यू शुड बी एबल टू मेक 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन एनी SWT और एनी कस्टम मॉड्यूल। ये तुम्हारे सही होने चाहिए। बाकी 10 जो तुम्हारे गलत हैं, वो एक बार नजर मार लो कि क्या गलत हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो देख लो, नहीं लग रहा तो छोड़ो, जस्ट लीव इट। आई हैव ऑलवेज सेड इट कि इन द वर्ल्ड ऑफ फोमो, जस्ट एंजॉय द जोलो, ओके। So after that, this is how you should be approaching each of the subject. And in the coming days, I'll be uploading similar kind of videos on how you should approach a particular subject and from where you should be reading it. And for all the 19 subjects, I'll be uploading these kind of videos. And if you have any other query of any kind, just comment down below this video. And one more thing I would like to add here is कि जब भी हम एक कोई सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम खत्म कर रहे हैं ना, हमेशा ऐसा होगा कि मेरे को 5-6 टॉपिक्स 10 टॉपिक ऐसे लग रहे हैं जो मेरे वीक हैं। उनका क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी अप्रोच के लिए, कि जब भी हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका हमें लग रहा है कि हमारा टॉपिक वीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नोट सेक्शन था, वहां पर तुम्हें क्या करना है, बस नोट कर लो ये टॉपिक मेरे वीक है। और जब तुम नेक्स्ट साइकिल करोगे, तो तुम्हारे वो वीडियोस के साथ में वो टॉपिक जो है वो तुम्हें पता है, वो पहले पढ़ो, ताकि वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। दैट्स हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। एंड जस्ट इन द एंड आई वुड लाइक टू अगेन मेंशन कि तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें कवर ड्राइव खेलनी है एंड कब तुम्हें सिक्स सिस्टम की बॉल छोड़नी है। दैट्स व्हाट द एग्जाम इज ऑल अबाउट। सो इट्स योर डे, just focus on how you should be approaching it. It's all about the strategy. Winning is just mentally. You have to win mentally. If you are winning a game mentally, you will perform very well. So just have the confidence, have the faith. If you have any query, just comment down below. I'll be more than happy to address that. Okay. Thank you so much.